Hello everyone, this is the sixth class of chapter 1 Electric Charges and Field. So let's start. Our first topic is electric dipole. What is electric dipole? A pair of equal and opposite charges separated by a small distance is called an electric dipole. तो अगर equal and opposite pair of charges लेंगे and they are separated by a small distance, then we can say that is an electric dipole. ठीक है, जैसे यहाँ पे लिया हुआ है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू एंड दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस एंड दिस इज known as electric dipole. Next, dipole moment. It measures strength of an electric dipole. Dipole moment क्या करता है? This measures the strength of an electric dipole. Electric dipole का dipole का strength को measure करते हैं. The dipole moment of an electric dipole is a vector whose magnitude is either charge times the separation between the two opposite charges, and the direction is along the dipole axis from the negative to the positive charge. तो ये माइनस Q2 प्लस Q एक्ट करता है, ये हमारा डाइपोल मोमेंट है. सो कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a सेपरेशन में है. देन द लाइन जॉइनिंग दिस कॉल्ड द डाइपोल एक्सिस. सो डाइपोल मोमेंट को कैसे डिफाइन किया गया है? आइदर चार्ज टाइम्स अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ये जो डिस्टेंस है वो. सो P वेक्टर इज इक्वल्स टू Q, चार्ज तो सेम है Q, एंड टू 2a वेक्टर. ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू Q इंटू 2a वेक्टर. दस द डाइपोल मोमेंट P इज अ वेक्टर क्वांटिटी, P एक वेक्टर क्वांटिटी है. इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द डाइपोल एक्सिस फ्रॉम माइनस Q टू प्लस Q. तो इसका डायरेक्शन किधर है डाइपोल मोमेंट का? माइनस Q टू प्लस Q. एंड इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिख सकते हैं? सिंपल, P इक्वल्स टू Q इंटू 2a. यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट इसका चार्ज, इसका मीटर, सो कूलम्ब मीटर. ठीक है. Examples of electric dipoles. Dipoles are common in nature in molecules like H2O, HCl, C2H5OH, CH3, COOH. ये सब क्या है? ये सब dipoles के example है. ठीक है, HCl, H2O, ये सब dipoles का examples है. Here the center of positive charge does not fall exactly over the center of negative charge. ठीक है, center of positive charge और negative charge एक साथ coincide नहीं करता है. Such molecules are electric dipoles. They have a permanent dipole moment रहता है. Next, dipole field. The electric field produced by an electric dipole is called a dipole field. So dipole जो electric field produce करता है उसको हम लोग dipole field कहते हैं. This can be determined by using the formula for the field of a point charge and the principle of superposition. So variation of dipole field with distance. The total charge of an electric dipole is 0. Minus Q and plus Q, total charge 0 है, but the electric field of an electric dipole is not 0. लेकिन उन लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है. दिस इज बिकॉज द चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. सो चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. इसी की वजह से सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैम व्हेन एडेड डू नॉट एग्जैक्टली कैंसल्स. तो तब हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड करते हैं दोनों की वजह से वो एग्जैक्टली कैंसिल आउट नहीं होता है. हाउएवर अ डिस्टेंस मच लार्जर देन द डाइपोल साइज, आर इज़ वेरी वेरी करते नहीं. अगर डाइपोल साइज से ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर हम लोग उसको द फील्ड्स प्लस क्यू एंड माइनस क्यू नियरली कैंसिल आउट. ठीक है, हेंस वी एक्सपेक्ट a dipole field to fall off at large distances faster than 1 by r square, typical of the field due to a single charge. ठीक है, in fact a dipole field at larger distance falls off as 1 by r cube. ठीक है. Now let's find the electric field at an axial point of a dipole. ये dipole है, उसका axial point में हम लोग electric field find करेंगे. Electric field at an axial point of an electric dipole. As shown in figure, consider an electric dipole consisting of charges plus q and minus q. यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है कंसिस्टिंग ऑफ प्लस चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a. ठीक है, ये इस डाइपोल का सेंटर है वो O, एंड द डाइपोल मोमेंट इज एक्टिंग फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू. सो डाइपोल मोमेंट इधर काम कर रहा है P. तो दिस इज प्लेस्ड इन अ वैक्यूम. लेट P बी अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल ऑन द साइड ऑफ द चार्ज प्लस क्यू. तो यहाँ पे P हमारा पॉइंट है, ये कहाँ पे है? ये फ्रॉम द डाइपोल सेंटर से r डिस्टेंस पे, डाइपोल का सेंटर से. ठीक है, डाइपोल का सेंटर से r डिस्टेंस में प्लेस्ड है इन द राइट साइड ऑफ द चार्ज q. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस q
ए माइनस क्यू चार्ज के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई ऑफ माइनस क्यू लिखा है, माइनस क्यू बाई 4πε0 आर प्लस ए होल स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। तो 1/4πε यहाँ पे रहा, एंड चार्जेस फॉर माइनस क्यू, एंड डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है आर, एंड सिंस दिस इज माइनस क्यू टू प्लस क्यू इज 2a, तो इतना क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा हमारा a, तो इसका टोटल डिस्टेंस रहेगा आर प्लस ए होल स्क्वायर। ठीक है, एंड p hat is the unit vector along the dipole axis from minus q to plus q, so it is acting towards left, e of minus q, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो इधर काम कर रहा है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू क्या हो जाएगा, यह प्लस क्यू 4πε0 r माइनस ए होल स्क्वायर p हैट टुवर्ड्स राइट। ये क्या हो गया, r माइनस ए होल स्क्वायर, यहाँ पे है q प्लस क्यू, तो ये सेंटर से लेकर यहाँ तक का r है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का a है, तो r माइनस ए होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड p हैट इट इज़ एक्टिंग टुवर्ड्स राइट, e प्लस क्यू इधर लग रहा है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है तो इसका अवे फ्रॉम द चार्ज रहेगा, तो e प्लस क्यू इधर लग रहा है। ठीक है, टुवर्ड्स राइट। हेंस रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालेंगे तो ई एक्सियल इज इक्वल्स टू, एक्सियल पॉइंट पे निकाल रहा है तो ई प्लस क्यू एंड ई माइनस क्यू, क्यू बाई 4πε0 कॉमन आ जाएगा, एंड प्लस क्यू के लिए 1/r माइनस ए होल स्क्वायर, एंड वो जो यहाँ पे था, यहाँ पे माइनस क्यू था तो माइनस 1/r प्लस ए होल स्क्वायर आएगा, माइनस 1/r प्लस ए होल स्क्वायर, एंड पी हैट क्यू बाई 4πε0। इसको अगर सिंप्लीफाइड करेंगे तो कितना क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, उसका होल स्क्वायर आ जाएगा, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आर प्लस ए होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए होल स्क्वायर। ये क्या है हमारा, ये हमारा ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, जिसको हम लोग 4ab लिख सकते हैं। 4ab अगर आया तो 4ar आएगा। ठीक है, या फिर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से सिंप्लीफाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर पार्ट कट जाएगा, सिर्फ 2ab एंड 2ab पार्ट रहेगा तो 4ab हो जाता है। तो यहाँ पे तो 4a और r है, 4ar। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट स्टेप 4ar हमारा p किया था, p था हमारा q इंटू 2a, राइट, p था हमारा q इंटू 2a। तो हम लोग 4ar को अगर सिंप्लीफाई करेंगे, इसका 2a इधर से ले लिया और यहाँ से q ले लिया, तो ये क्या आ जाएगा, p आ जाएगा, और कितना पर आ रहेगा 2r, तो ये क्या हो जाएगा 2pr। सो ई एक्सियल इज 1/4πε0 2pr बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर p हैट। ठीक है, नाउ फॉर r वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, अगर r क्या था हमारा, r था डायपोल के सेंटर से p का डिस्टेंस, अगर r वेरी वेरी ग्रेटर देन ए होगा, मतलब ये डिस्टेंस से बहुत ज़्यादा होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड व्हेन r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, तो ये नीचे का आ जाएगा r⁴ स्क्वायर स्क्वायर, r⁴ ऊपर 2pr है, एंड r कट जाएगा तो 2p बाई आर क्यूब पर आ रहेगा, तो ई एक्सएल इक्वल्स टू 1/4πε0 2p बाई आर क्यूब p हैट। दिस इज फॉर r वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, देन वी कैन नेग्लेक्ट द ए स्क्वायर पार्ट। ठीक है, तो ई एक्सियल क्या आ जाएगा 1/4πε0 2p बाई आर क्यूब p हैट टुवर्ड्स राइट। ठीक है, clearly electric field at any axial point of the dipole acts along the dipole axis from negative to positive charge, that is in the direction of dipole moment। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। सो वी हैव टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस डाइपोल एट दिस इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, तो एज शोन इन फिगर, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज से कंसिस्टेड दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a, separated by a distance 2a, and it is placed in vacuum. Now let P be a point on the equatorial line. P be a point on the equatorial line. ये क्या है, डायपोल का इक्वेटोरियल पॉइंट है। Of the dipole at a distance r from it, the distance r from it, ये डिस्टेंस क्या है
आर है, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया है, ये डायपोल के सेंटर से लिया गया है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, डायपोल का इक्वेटोरियल पॉइंट। सो ओ पी इज़ आवर आर, ओ पी इज़ आवर आर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एट पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू दिस डायपोल। तो डायग्राम को समझ लेते हैं। ये डायपोल है, ठीक है, और चार्ज क्यू से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो यहाँ पे एंगल थीटा क्या हुआ है, सिमिलरली यहाँ पे भी एंगल थीटा ही होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस आर है एंड ये पूरा डिस्टेंस 2a है, तो ये ए होगा, ये ए होगा, ठीक है। एंड सिंस इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल टू द पावर हाफ, ठीक है। एंड चार्ज क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगेगा, इधर लगेगा, एंड चार्ज माइनस क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा। फॉर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, तो इसलिए इसका डायरेक्शन इधर है। एंड फॉर माइनस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, टुवर्ड्स द चार्ज, दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। एंड इन दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ एक्ट करेगा, इधर एक्ट करेगा बाय वेक्टर लॉ, ठीक है। एंड ये जो थीटा होगा, ये थीटा और ये थीटा सेम है, क्यों, क्योंकि ये डायपोल का एक्सिस है एंड सिमिलरली ये भी एक्सिस है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है एंड ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है, सो ये थीटा और ये थीटा क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स है। सिमिलरली ये थीटा और ये थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्यू इज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, ई प्लस क्यू इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डायरेक्टेड अलॉन्ग बी पी। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और ये कहाँ पे एक्ट कर रहा है, अलॉन्ग दिस बी पी, ठीक है, अलॉन्ग दिस डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव चार्ज। देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज क्या हो जाएगा, ये भी सेम होगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी सेम है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस। एंड दिस इज एक्टिंग अलॉन्ग द डायरेक्शन पी ए, बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग टुवर्ड्स द चार्ज, तो अलॉन्ग द पी ए, ठीक है। तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, जस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ ई माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर इक्वल, यहाँ पे ये दोनों ही सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं ई माइनस क्यू इक्वल्स टू ई प्लस क्यू, दैट इज 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। Now clearly the components E minus Q and E plus Q normal to the dipole axis will cancel out. तो ये समझ लेते हैं, सबसे पहले इसको तोड़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो लग रहा है ड्यू टू Q, पॉजिटिव Q, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, लेकिन यहाँ पे ये थीटा एंगल किया हुआ है, ठीक है, तो इसका कंपोनेंट निकलेगा। तो यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ से भी होगा एक लाइन, कोरस्पॉन्डिंग लाइन उसका। तो हमें अगर, तो ये चार्ज के लिए इसका दो कंपोनेंट रहेगा, अलोंग दिस डायरेक्शन एंड अलोंग दिस डायरेक्शन। सिमिलरली ये चार्ज के लिए भी दो कंपोनेंट रहेगा, अलोंग दिस डायरेक्शन एंड अलोंग दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो ये वाला डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट रहेगा ये देखते हैं। तो ये अगर थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा बेस है, तो यहाँ पे बेस को क्या लिया है, ई इक्वेटोरियल, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय, अगर कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ई इक्वेटोरियल हमारा बेस है, हाइपोटेन्यूज क्या है, ई प्लस क्यू, तो हमारा क्या निकल जाएगा, ई इक्वेटोरियल जो है वो क्या निकल जाएगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ठीक है। तो अलॉन्ग इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, ई क्यू साइन थीटा, ठीक है, ई क्यू साइन थीटा। और सिमिलरली फॉर दिस चार्ज के लिए यहाँ पे भी क्या लगेगा, ई क्यू कॉस थीटा, एंड दिस डायरेक्शन के लिए क्या लगेगा, ई क्यू साइन थीटा। तो ये और ये दोनों पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए बोला कि द कॉम्पोनेंट्स ई माइनस क्यू एंड ई प्लस क्यू नॉर्मल टू द डायपोल एक्सिस विल कैंसिल आउट। तो डायपोल एक्सिस ये है एंड नॉर्मल टू द डायपोल एक्सिस ये है, तो ये वाला दोनों पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड द components parallel to the dipole axis add up, so the total electric field E equatorial is opposite to P। तो यहाँ पे क्या बोला है, जो पैरेलल
कंपोनेंट्स है, मतलब ये वाला कंपोनेंट्स ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दैट इज ई क्यू कॉस थीटा। इसके लिए भी ई क्यू कॉस थीटा इधर, इसके लिए भी ई क्यू कॉस थीटा इधर काम कर रहा है, ठीक है। नाउ उसके बाद बोला द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वेटोरियल इज ऑपोजिट टू पी वेक्टर। क्यों? क्योंकि यू ई इक्वेटोरियल जो काम कर रहा है वो इधर लग रहा है एंड पी वेक्टर किधर लग रहा है, माइनस क्यू टू प्लस क्यू, तो इन दिस डायरेक्शन, तो ये दोनों ऑपोजिटली डायरेक्टेड है। तो नेक्स्ट अगर टोटल इक्वेटोरियल निकालेंगे तो कितना आएगा, नेगेटिव, बिकॉज ऑफ द ऑपोजिट एंड सिंस दिस इज अ फैक्टर दैट्स वाई, एंड इसका टोटल सम होगा ई क्यू कॉस थीटा प्लस ई क्यू कॉस थीटा पी हैट, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन ई क्यू कॉस थीटा से आ रहा है, ठीक है। तो ई क्यू कॉस थीटा, इसके लिए भी ई क्यू कॉस थीटा इधर, इसके लिए भी ई क्यू कॉस थीटा इधर, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस टू ई क्यू कॉस थीटा, सिंस ई ऑफ माइनस क्यू इज ई ऑफ प्लस क्यू। नाउ टू को बिठा दिया, ई क्यू का क्या आएगा, 1/4π/0 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड कॉस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इज a/√r² प्लस ए स्क्वायर। यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, ये अगर परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा इधर, कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है हमारा ए एंड हाइपोटेन्यूज क्या है ये वाला, तो √r² प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर बिठा दिया यहाँ पे a/√r² प्लस ए स्क्वायर, देन ये r² प्लस ए स्क्वायर एंड √r² प्लस ए स्क्वायर क्या देगा, होल टू द पावर 3/2। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 2qa, हमारा डायपोल मोमेंट क्या होता है, q इंटू 2a, तो यहाँ पे यही है q इंटू 2a, तो उसको p लिख सकते हैं, तो -1/4π/0 p √r² प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 p हैट, ठीक है। हाँ, p इक्वल्स टू 2qa इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, एंड ये हो गया। एंड इफ़ द पॉइंट p इज़ लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द डायपोल, अगर डायपोल से बहुत दूर अगर p लोकेटेड है तो क्या हो जाएगा, हमारा r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन a, r क्या हो जाएगा, इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो उसके बाद हम लोग इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, तो उसके बाद r² क्या हो जाएगा, ये और स्क्वायर कट जाएगा तो r³ रहेगा, तो नीचे -1/4π/0 p/r³ p हैट, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डायपोल फॉर अ फार अवे point. So clearly the direction of electric field at any point on the equatorial line of the dipole will be anti-parallel to the dipole moment p hat, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी पैरेलल होगा टू द डायपोल मोमेंट p हैट, क्योंकि डायपोल मोमेंट किधर लग रहा है, डायपोल मोमेंट लग रहा है along this direction एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है along this direction, तो दे आर इन एंटी पैरेलल, ठीक है। नेक्स्ट अगर कंपैरिजन करेंगे बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ शॉर्ट डायपोल एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट्स का, तो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ शॉर्ट डायपोल एट एन एक्सियल पॉइंट क्या था, ई एक्सएल इक्वल्स टू 1/4π/0 2p बाई r क्यूब, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट एट द सेम डिस्टेंस r क्या हो जाता है, इक्वेटोरियल 1/4π/0 p बाई r क्यूब, अभी निकाला है, ठीक है। तो ये दोनों इसका मैग्नीट्यूड है, तो ये क्या है, ई इक्वेटोरियल हम लोग कह सकते हैं, ई इक्वेटोरियल कितना है, फिर ई एक्सएल क्या कह सकते हैं हम लोग, ई एक्सएल इज इक्वल्स 2 इंटू ई इक्वेटोरियल पोजीशन, ये 2 टाइम्स बड़ा है इससे, तो क्लियरली ई एक्सएल इज इक्वल्स टू 2 इक्वेटोरियल, हेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए शॉर्ट डायपोल एट अ डिस्टेंस आर along its axis is twice the electric field at the same distance along the equatorial point, ठीक है। फॉर सेम डिस्टेंस के लिए तो ई एक्सएल का इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा रहेगा देन डबल रहेगा देन ई इक्वेटोरियल पोजीशन। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है torque on a dipole in a uniform electric field. So derive an expression for the torque on an electric dipole placed in a uniform electric field. Dipole uniform electric field में placed है, तो हमें उसमें जो torque लग रहा है उसका expression निकालना है, ठीक है। As shown in figure, consider an electric dipole consisting of charges plus q and minus q. सो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a, लेंथ 2a, प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ पे प्लेस्ड है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है, ठीक है। मेकिंग एन एंगल थीटा विथ इट, सो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डाइपोल जो है वो एंगल थीटा किया हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डाइपोल इधर है, तो दिस इज मेक्स एन एंगल थीटा with the electric field. It has a dipole moment of magnitude, इसका dipole moment क्या है, p equals to q into 2a, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फोर्स exerted on charge plus q by field a vector, तो चार्ज q जो है उसमें फोर्स किधर फोर्स लग रहा है
QE, ठीक है, कहाँ पे लग रहा है, along the direction of electric field. And force exerted on charge minus Q by field E vector क्या है, माइनस क्यू ई वेक्टर, दैट इज ऑपोजिट टू ई वेक्टर. तो माइनस क्यू पे फोर्स इधर लग रहा है माइनस क्यू ई एंड पॉजिटिव क्यू पे प्लस क्यू ई. तो अगर टोटल फोर्स निकालेंगे एफ टोटल क्या आ जाएगा, प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई, दैट इज 0. ठीक है, तो इसका जो फोर्स है, हेंस द नेट ट्रांसलेटिंग फोर्स, ये क्या है, ट्रांसलेटिंग फोर्स मतलब जो लीनियर फोर्स होता है वो. तो ऑन ए डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. सो द ट्रांसलेटिंग फोर्स इज 0, मतलब डाइपोल का कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा. बट द टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द डाइपोल. बट यहाँ पे क्या है, डाइपोल का एंड पे टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दे फॉर्म ए कपल विच एक्सर्ट्स अ टॉर्क. ठीक है, जब टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कपल. एंड दिस कपल एक्सर्ट्स अ टॉर्क, जिसके वजह से डाइपोल का क्या होगा, रोटेशन होगा. ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा क्योंकि एफ टोटल जो निकला है वो 0 निकला है, तो ट्रांसलेटिंग फोर्स तो यहाँ पे 0 है, ट्रांसलेशन नहीं होगा डाइपोल का, बट डाइपोल का रोटेशन होगा. ठीक है, सो हमें पता है टॉर्क इज इक्वल्स टू आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस. तो टॉर्क का क्या होता है, टॉर्क टाउ इक्वल्स टू हमें पता है एफ इंटू डी. तो ये टोटल डिस्टेंस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, एंड फोर्स इधर फोर्स. ठीक है, तो इधर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो. तो यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा यहाँ पे फोर्स तो यहाँ पे क्यू ही है, बहुत ही क्यू ही है, बट इन दोनों के बीच ये डिस्टेंस तो 2a है, बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है फोर्स के बीच. तो फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला पार्ट हो जाएगा. तो लेट सपोज दिस इज एक्स, तो ये अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये अगर परपेंडिकुलर है, ये एंगल थीटा है, तो हमें ये निकालना है. तो परपेंडिकुलर निकालना है तो साइन थीटा निकालेंगे. साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, दैट इज 2a. तो एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, 2a साइन थीटा. तो ये हमारा क्या डिस्टेंस है, 2a साइन थीटा. ठीक है, 2a साइन थीटा. तो यहाँ पे बिठा देता है, तो टाउ इक्वल्स टू आइदर फोर्स मतलब क्यू ई फोर्स, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या निकला, 2a साइन थीटा. नेक्स्ट इसको अरेंज करते हैं, क्यू इंटू 2a लिखते हैं और ई साइन थीटा को बाहर रखते हैं. क्यू इंटू 2a क्या है, ये हमारा डाइपोल मोमेंट है, तो इसको हम लोग p लिख सकते हैं, पी ई साइन थीटा. सो टाउ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टाउ इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा. नाउ एज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क टाउ इज परपेंडिकुलर टू द बोथ p एंड e, वो जो p का डायरेक्शन है और e का जो डायरेक्शन है उसके साथ टाउ क्या क्या रहेगा, परपेंडिकुलरली डायरेक्टेड रहेगा. दैट्स वाई टाउ इज इक्वल्स टू p क्रॉस e भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो p का डायरेक्शन इधर है, माइनस क्यू टू प्लस क्यू इधर, एंड e का डायरेक्शन इधर है, तो टाउ का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ p एंड q बोथ. तो इसका डायरेक्शन हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसका डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड थंब रूल से फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो चारों उंगली को p की तरफ रखेंगे, p की तरफ रखेंगे, चारों उंगली को p की तरफ रख दिए, उसके बाद रोटेशन किया उंगली का अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ ई पे. अगर ई पे अगर रोटेशन किया तो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हमारा थंब जो इंडिकेट कर रहा है वो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्ट कर रहा है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाउ का डायरेक्शन इनटू द पेपर हो जाएगा. ठीक है, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर होगा. ठीक है, तो इसको हम लोग राइट हैंडेड स्क्रू रूल से भी कर सकते हैं, लेकिन राइट हैंड थंब रूल से भी कर सकते हैं. ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ टाउ क्या हो जाएगा, इज परपेंडिकुलर टू एंड पॉइंट्स इन टू द प्लेन ऑफ पेपर. ठीक है, तो पी का डायरेक्शन इधर था और ई का डायरेक्शन इधर था, तो अगर पी से लेके ई तक हम लोग उंगली को फहराएंगे तो हमारा थंब जो होगा वो इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर इंडिकेट करेगा. सो व्हेन द डाइपोल इज रिलीज्ड द टॉर्क टाउ लेंड्स टू अलाइन द डाइपोल विद द फील्ड ई. मतलब डाइपोल को अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो टॉर्क जो होगा डाइपोल पे अंदर जो टॉर्क लगेगा ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या करेगा, वो डाइपोल को अलाइन करना चाहेगा अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, दैट इज टेंड्स टू रिड्यूस एंगल थीटा टू 0. तो वो क्या करना चाहेगा, जो एंगल है थीटा, इसको 0 करना चाहेगा. ये क्या करना चाहेगा, इसको डाइपोल को ऐसे है वो ऐसे करना चाहेगा अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे रखना चाहेगा, तो थीटा 0 करना चाहेगा.
सो व्हेन द डाइपोल गेट्स अलाइंड विथ ई द टॉर्क टाउ बिकम ज़ीरो। जब वो अलाइंड हो जा रहा है, ठीक है, एकदम इसका ई फील्ड के तरफ, तो ये क्या होगा, इसका टाउ क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा। क्लियरली द टॉर्क ऑन द डाइपोल विल बी मैक्सिमम व्हेन द डाइपोल इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू ई। डाइपोल का टॉर्क कब मैक्सिमम रहेगा, जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एकदम परपेंडिकुलर रहेगा, डाइपोल ऐसा रहेगा तभी, ठीक है। तो ये इस पोजीशन में डाइपोल पे मैक्सिमम टॉर्क लगेगा एंड देन इट विल ट्राई टू रिड्यूस द एंगल बिटवीन देम, ठीक है। तो टाउ मैक्स क्या आ जाएगा, पी ई साइन 90 एंड दैट इज इक्वल्स टू पी ई। यहाँ से हम लोग डाइपोल मोमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। वी नो दैट टाउ इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। तो अगर ई इक्वल्स टू 1 हुआ, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हुआ, देन टाउ इक्वल्स टू पी कह सकते हैं हम लोग। Hence dipole moment may be defined as the torque acting on an electric dipole placed perpendicular to a uniform electric field of unit strength। मतलब यूनिट स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड लिया एंड अगर डाइपोल को प्लेस किया परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन जो टॉर्क लगेगा डाइपोल के ऊपर उसी को हम लोग डाइपोल मोमेंट भी कह सकते हैं।